Now I request President Mahadevan to say a few words. Good evening. On behalf of my team at IRMA, I take this opportunity to welcome you all to the 28th Annual General Body Meeting of Indian Resin Manufacturers Association. I also extend a warm welcome to all our past presidents who have been our guiding force. The last 2 years, post my taking over as the president of the association in September 2021, has been a mixed bag. The first 6 months were dominated by the Omicron blues, and we could not hold any in-person activities for the members. We kept our members engaged with a few webinars and industry updates. Post the COVID fears receding, we got about planning events for our members' benefits. With a moderating inflation, ease of account deficit, and improved foreign exchange, the future of the Indian economy is strong in years to come. While the major global economies are still weighed down by stagflation, India has shown resilience and growth momentum is continuous. Your thinking creates your world, your performance causes your impact, and your devotion to learning shapes the depth of your legacy. True to the above, we had an eventful 2 years filled with knowledge dissipation for members' benefits. We'll take you shortly through the events that we have had during the past 2 years. The first in-person general body meeting with limited attendance was held on 11th of March 2022 at Chembur Gymkhana with a lecture by Mr. Ramesh Bhatia on Dr. Kalam and John Gill's Make in India. This was followed by AGM on 23rd September at Chembur Gymkhana once again, which has been a happy hunting ground with 2 lectures by MCX India on energy price risk and a presentation by Mr. Rajesh Kamath on Samudra Manthan. The event was well attended by over 60 to 70 members. Due to non-availability of dates from ICT, we could not hold our proposed workshop during the above period. The general body meeting on 10th of February was combined with the budget meet where Mr. Sailesh Seth was a speaker with budget and its implication. To make up the non-availability of the workshop or the hall at ICT, IRMA jointly with Azilis India organized a half-day workshop at Azilis office in Navi Mumbai on 29th of July 2022, themed Azilis IRMA Knowledge Sharing Workshop. The event saw an attendance of over 60 members and was jointly inaugurated by Ms. Aparna Kurana, Managing Director of Azilis, along with IRMA President. The event had a good technical presentation by Mr. Ankush Panchkade of Memento Performance Materials, Mr. Ketan Dave, DGM Grand Polycoats Company Private Limited, along with Ms. Shraddha Khadge of Indorama and Mr. Parag Raut of Azilis India. In the month of June 2023, we had a flagship seminar at Hotel Farias under the convenership of our past presidents, Sri Siddharth Shah, and our committee member, Mr. Manish Khandekar, who was the co-convener, on topic Green Initiative for the Resin Industry. The event saw the highest number of rooms booked and the highest count of delegates in attendance. This goes to show the passion among the members for our events. The event had eminent speakers and discussions across were appreciated by one and all. The IRMA newsletter was restarted under the able editorialship of our Executive Secretary, Mr. Kannan, and circulated among all members. Can we have a big round of applause for him? Can we just present a bouquet? On behalf of my team, I take this opportunity. Aditya, can you present the bouquet to Mr. Kannan for all the service that he has, the yeoman service that he has done for the association. We look back with satisfaction at the growth in the membership and the various events conducted during my tenure. As the saying goes, change is the only constant. And as I prepare to hand over the baton of the association to a new young team, I would like to express my sincere thanks to all my team members, Vice President Hiren Shah, Secretary Aditya Chandrachud, Managing Committee Member Dr. Venkatraman, Mr. Manish Nagrecha, Bhagyesh Narkade, Chellawala Saab, our immediate past president, Managing Committee Member Vikrant Bajaria, Mr. Manish Khandekar, Ashay Mehta, and Dr. Parag Raut. Have I missed out anybody? Bhagyesh? Yeah, you are name is there. For their continued support and guidance during my term to serve you and make it a memorable one.
Also, I would like to thank our Executive Secretary Kannan for the efficient handling of the back office and being of support always. A big thanks to all the past presidents and all you members who have always been our pillars of strength and who have always been our guiding force. Last but not the least, my parents who have been with me throughout. My wife Sumati, who has been my critic and motivator along with my daughters. I wish the new incoming team of IRMA all the very best and success. As I bid adieu to you all from this stage, it is with mixed emotions after a wonderful 2 years of being in service to the fraternity. Thank you very much for all your support. Thank you. Over to you, Aditya. So once again, good evening, ladies and gentlemen. Now, along with the managing committee, I again welcome you all for the 20th annual general meeting. Now, I think since the requisite quorum is present, therefore I declare the meeting open. I am sure that you all have received the notice along with the annual report for the year 22-23, and therefore I take the same as read. So I will continue with the following proceedings. This is item number 1. Now I wish to take item number 1 of the notice, that is to read, approve and sign the minutes of the last AGM held on 23rd September 2022. The minutes of the AGM held on 23rd September 2022 has been circulated to the members as part of the annual report, and I take the liberty of considering the same as read. Now I propose the following. Resolved that the minutes of the last AGM held on 23rd September 2022 are hereby read, approved and signed. I would like to know the person who would like to second it. Item number 2. Now I take the item number 2 of the notice to receive and adopt the report of the managing committee together with the statement of the audited accounts for the year ended 31st March 2023. Now I propose the following. Resolved that the audited balance sheet as at 31st March 2023 and the income and expenditure account for the year ended 31st March 2023 and the report of the managing committee thereon be and hereby received, considered and adopted. I would like to know the person who would like to second it. Now I take the item number 3 of the notice, that is to appoint auditors for 2023 to 2024 and fix their remuneration. In view of the term of the office of our auditor, Messrs. Sakhalkar and Associates, ending at the end of this ensuing AGM, I propose that Messrs. Sakhalkar and Associates, having offered themselves for appointment as auditor for the year 23-24, be appointed as the auditor of the association to hold office till the conclusion of the next AGM. For this, I propose the following resolution. Resolved that the retiring auditors, Messrs. Sakhalkar and Associates, be and are hereby reappointed as the auditor of the association to hold the office till the conclusion of the next annual general meeting on a remuneration to be decided mutually between the said auditor and the managing committee of the association. I now put this resolution to vote and propose it. I would like to know the name of the person who would like to second it. Item number 4. Siddharth Bhai seconded it. Election of the managing committee for the year 23-24 and 24-25. We have received the following valid nominations. Mr. Hiren Jitendra Shah as President from Beta Paint Industries. Mr. Aditya Ballal Chandrachud, Vice President from Borocris. Dr. B. Venkat Raman, Honorary Secretary from Grasim Industries Limited, Aditya Birla Group. Mr. Bhagyesh Narkhede, either Treasurer or a Managing Committee member, yet to be decided, from MAC Coatings. Vikrant Kirit Bajaria as member of the Managing Committee from Provic Industries, and Gaurav Sathe as member from DSV Chemicals Private Limited. Since there are no other valid contestants for the above post, we take it that the above candidates are elected unopposed and the following resolution be passed. Resolved that the following members be and are hereby elected unopposed.
Mr. Hiren Jitendra Shah, President, Mr. Aditya Ballal Chandrachud as Vice President, Dr. B. Venkatraman as Honorary Secretary, Mr. Bhagyesh Narkede as a Managing Committee Member / Treasurer, Mr. Vikrant Kirit Bajaria as Managing Committee Member, and Gaurav Dhananjay Sathe as Managing Committee Member. Who would like to propose the same? Ashay? Yeah, and anyone like to second it as well? Ashay cannot. So, DG Parekh. And anybody seconding it? But we'll have to... Okay. Can we have a big round of applause for the new team, please? Baba, next sentence के बाद तो our immediate past president, Mr. Mahadevan, will continue to be our committee member. So, hence, we need 2 more members, ordinary members, for the committee. If anybody would like to join us, you can give their name to Kananji, and we can sort out this thing with the application letter. Otherwise, committee on their own will select from the IRMA members, ordinary members. Okay, so we can move on to item number 5. Now I take the last item, that is the item number 5, to transact such other business as may be brought by any member after due notice or with the permission of the chair. So I request outgoing president, Mahadevan, to welcome the incoming president, Hiren Shah, with a floral bouquet. Come on, ladies and gentlemen, let's give him a big hand. Can we have a bigger round of applause, please? Thank you. All the very best. Thank you. Looking forward to a wonderful film. Now I request the incoming president, Hiren Shah, to say a few words. Respected President Mahadevan ji, past President, committee members, dignitaries on the dais, distinguished guests, and dear friends. Welcome to the IRMA annual meet. Now, I want to take this opportunity to express my appreciation to the outgoing President, Mr. S. Mahadevan, for his dedication and unwavering commitment to the Indian Resin Manufacturers Association. Mr. Mahadevan, your leadership has made IRMA perform beyond expectations. On behalf of the entire association, I would like to extend my heartfelt gratitude for your exemplary service and leadership during your tenure as our president. Thanks Sumati ma'am for sparing him, and we understand how difficult it would have been to stay with him because we even faced that. But it's for the betterment of the association. No, I said it's for the betterment of the association only. Thank you, Shraddha, in advance. So your legacy of excellence will continue to inspire us. We wish you all the best in your future endeavors. And we look forward to continuing to build upon the foundation you have laid. Thank you once again for your exceptional service and leadership. And congratulations on a successful and fulfilling term as a president. As a token of appreciation, I would like to present you with a memento along with our entire committee.
Pleasure working with you all. Thank you, sir. Photo. Thank you very much. Thank you. Thank you. All the very best to the meeting. Dear members of IRMA family, it is an honor to stand before you today as your newly elected president. First of all, I would like to thank God and my parents. Special thanks to my wife, mom, dad, sis, my kid, who have, all of them have been my role model and guiding factor. They have been responsible for inculcating this culture of serving this industry, which is our bread and butter. I hope I can live up to their expectations as well. I am humbled by the trust all of you have placed upon me, and I am excited to take on this role and work alongside each and every one of you to build upon the incredible work of my predecessors. Their efforts have helped to shape this organization into the thriving community that it is today, and I look forward to continuing the legacy of this excellence. IRMA has always been a collective collaboration between the team. This culture of IRMA has been created by its founders and have taken decisions collectively and for the benefit of all. There is one good thing about IRMA, that all past and present committee members work together, leaving aside any ego or age bar. For the welfare of the association, we have our past presidents for any kind of guidance and help. I expect full cooperation from them as always. As we move forward, we want to assure you that we are fully committed to the advancing our mission and ensuring that this association remains a valuable resource for all our members. We plan to work collaboratively to identify new opportunities for growth, develop innovative programs, and build stronger relationship with our members in the coating industry, along with activities like workshops, biennial seminar, member engagement, government representations for helping the members at large, training our operators and supervisors, which is a brainchild of our dear friend Aditya. Speaking of him, now let me introduce you to the whole team. Mr. Aditya Chandrachud, the Vice President, dedicated person. Most of us are aware of his capabilities in organizing association events. One of my go-to person for any work. He is from Borokris. Mr. B. Venkatraman, the Honorary Secretary, President of Grasim India Limited of Aditya Birla Group. He has vast experience in the industry, highly capable, and we all have witnessed his recent action in IRMA seminar as a coordinator and a conductor of the panel discussion, which was appreciated by all. He is not able to reach today because of his flight has been delayed and is landing tomorrow. So thanks in his absence as well. Mr. Bhagesh Narkhade, Managing Committee member, and will be taking over as a treasurer. Finally, someone younger to me in the committee. He very actively participated in the recent seminar for getting members and delegates and helped me in getting the souvenir perfect. He is from Mac Coatings. Mr. Vikrant Bajaria. He has been in committee since past 4 years, and we welcome him again to actively participate and work hands-on with other committee members. He is from Provic Industries.
Mr. Gaurav Sathe, young and energetic new member entering committee for working hand in hand with us. He has experience of various other associations as well, which will be helpful for us. He is from DSV Chemicals Limited. Even he might reach late. It is our earnest effort to introduce and induct more young Turks into IRMA Managing Committee to take IRMA to greater heights. But members, most importantly, we want to hear from you. Your input, your feedback are essential for our success. And we are committed to listening to your concerns, ideas and feedbacks. IRMA e-News, IRMA WhatsApp group is another tool that IRMA has been successfully doing for the past few years. This has helped in easier communication between IRMA and its members. Again, we are looking to explore more ideas. Together, we can build a stronger and more vibrant association that serves our members and advances our shared goals. Thank you once again for this incredible opportunity to serve as your president. I am excited to begin this journey with you all and look forward for great work we all accomplish together. Looking forward to your support, cooperation and blessings always. Thank you. So thank you, Hiren, for your kind words and your vote of thanks. Since there is no further matter, I call this meeting as closed. And now I would like to invite our guest speaker, Mr. Sapan Kumar Bardan, for self and organization development to talk on the subject purpose of life. I request our President, immediate past President Mahadevan to present a bouquet. So it's our pleasure to welcome you to this forum. Over to you. Yeah, I invite Vikrant Bajaria to introduce our speaker for the day. Good evening, ladies and gentlemen. Heartiest of congratulations to the newly elected president. With the permission of the chair, I take pleasure in introducing our speaker for the day, Mr. Sapan Kumar Bardan. He is an author and a veteran stalwart of national repute in the field of total quality management, coaching people, and integrated management systems. Mr. Sapan Kumar is a motivational speaker too and has enriched experience of about 45 years in the industry, which includes senior positions in large corporates. His first book, Unfolding Success, has acted like a guiding lighthouse to many readers and continues to inspire new ones. He started his career in a public sector unit, SAIL, the Steel Authority of India, in the Bhilai Steel Plant. He started as a project engineer and later on he went into the TQM secretariat. He moved from government to private sector integrated large-scale steel industry. He is known for his innovative techniques of training, which have been extremely effective for a large number of senior management executives. Mr. Sapan Kumar presented papers in various quality control councils at Lucknow, Hyderabad, Mumbai, Ahmedabad, and was a moderator of various panel discussions organized by the prestigious institutes. Mission Eklavya, people transformation through education and training, quality excellence through daily work management and management reviews are few of his articles that have been published in the ASQ since November 2014 to November 2016. One of the most prestigious landmark was when Mr. Sapan led the Indian delegation to Manila during the International Convention for the Quality Control Council in 1999. He introduced learning management concept, a departure from traditional training, by his own developed module, Mission Eklavya.
On social and spiritual fronts, he is associated with Ramakrishna Math Mission and the Brahma Kumaris, and Ishwarya Vishwa Vidyalaya and Mahavir International. I hand it over to Mr. Sapan for the presentation. Thank you very much. Dear members, Sapanji has published a book, and it will be our pleasure to launch it on our forum. So Sapanji, please join us. Ashok ji, aaiye. Ashok Goklani ji has been instrumental in arranging for today's speaker. So. Embrace balanced leadership. You can see why they did past tense. I was the first to open it. And this is necessary for us as well, leadership. Okay, thank you so much for this. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you and congratulations. Thank you. Should I start? Yes. Good evening. No response. Good evening. Very late. Good evening. Good evening. Very good. Thank you. And good evening to all gentlemen, also to ladies, sisters, Bhabijis. I have to take special care because 33% already reservation has been made. So we all have to take care, and I don't know when it will shoot up to 50%. Okay, so women's power, we must everybody respect the women's power. See, first book was Unfolding Success. I thought, just to give you again in 1 or 2 minutes that from government organization to the private and corporates and a lot of organization including Aditya Birla Group, against world-class management, along with my friends I did, and I was also a lead assessor for ISO certification body, many. So what I did, I learned, implemented, taught, assessed, and came out with the opportunities for improvement. And actually this cycle should continuously go on, not for any organization, but it also basically for each of us. Problem is, when we ask for changing, the government बदल नहीं रहा है, organization बदल नहीं रहा है, बदलेगा कैसे भाई? हम तो नहीं बदल रहे. जब हम बदलने की बात करते हैं तो हर कोई ये कर रहा है कि ये बनना चाहिए, वो अच्छा करना चाहिए, वो करना चाहिए. क्रिटिसिज्म होता है, मैं भी करता था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था. पर इतने साल बाद आया कि वो सही है, लेकिन मैंने क्या किया? अपने आप को पूछो. And at night, early in the morning, the response will come to you. Yeah, these are your gray areas. Individual life में अपने आप में अगर आपको opportunity for improvement, that in short we call as a OFI, opportunity for improvements है, तो मेरे OFI मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता. Agreed or not? कौन एग्री कर रहे? थोड़ा हाथ उठाना पड़ेगा. थोड़ा सा मैं ये बता, मैडम आप भी, हाँ तो चलेगा. एक चीज़ थोड़ा यहाँ मैं बता देता हूँ. मेरा ये भी एक चैलेंजिंग आज जॉब है जो आपके पास हूँ, और थैंक्स टू अशोक जी एंड मिस्टर चंद्रचूड़ वाज देयर, ही वाज ऑल वे देयर. ये सबसे चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि मेरे जो अभी तक है इम्प्लीमेंटेशन के बाद, इसलिए मेरे पास लाइव एग्जांपल्स आते हैं. कोई भी इंडस्ट्री ले लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लो. मैंने MBO को भी पढ़ाया है, जबकि मैं MBO हूँ नहीं, HR मालूम नहीं मैंने, क्योंकि बट पीपल मैनेजमेंट मुझे मालूम लगा, पढ़ा कि जब मैं उनमें इन्वॉल्व हुआ. व्हाट इज़ पीपल मैनेजमेंट? तो बुक में अलग है, प्रैक्टिकल अलग है, बुक चलता नहीं है.
बुक चलता है, हाँ, ये प्रैक्टिकली है ना, इसीलिए लिखा। तो उसके लिए क्या है कि पहला जो प्रोग्राम है ना 19 आपका 3 इयर्स पहले मैंने अनफोल्डिंग सक्सेस लिखा था। ठीक था, फर्स्ट था, थोड़ा सा एकदम वेरी वेरी ओपन ना, आई एम वेरी ओपन कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी उसमें, लेकिन बहुत मोटिवेशनल बुक जैसे उसने जैसा बताया ऐड किया वो सही है, गलत नहीं है। और पता नहीं कैसे ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर भी बन गया धीरे धीरे, अनफोल्डिंग सक्सेस, जिसमें मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत है। अगर मैं लाइफ के एक्सपीरियंस बनना शुरू करूं, कैसे उठा कैसा चढ़ा, और एक चीज़ जो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, किसी से नहीं डरता। गवर्नमेंट तो छोड़ो, गवर्नमेंट में अगर आप कुछ बोलोगे तो प्रमोशन नहीं होगा, प्राइवेट में होगा तो बोलेगा अपने हिसाब करो बाहर जाओ। हाँ होगी नहीं, हाँ या वो थोड़ा पर्सनल है तो डर करना ही पड़ता है, लेकिन वहाँ भी इम्प्रूवमेंट है ना साथ में रह के। तो हाँ, अनफोल्डिंग सक्सेस हो गया। और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की जो बात कर रहे हैं, इसलिए पर्पस ऑफ लाइफ के बात की है ना, तो थोड़ा सा एकदम मुझे कोई बोलने में झिझक नहीं कि मैं शिव का बच्चा हूँ, थोड़ा सा ब्रह्म कुमारी साथ के टच हुआ, उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के बहुत सारे आपको मिलते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी जी। कमिंग बैक टू द चैलेंजिंग टास्क जो है ना, ये नॉर्मली आई कंडक्ट प्रोग्राम्स ऑफ 2 days ऑफ 7 hours, 7.5 hours, 8 hours। अभी आई वॉज टोल्ड 45 minutes and 1 hour, बट अभी जो लेटेस्ट मैसेज है कि जितना जल्दी कर सकते हो उतना ख़त्म करो, तो बहुत दिक्कत वाला काम है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो देर आर 2 options, आपको मैं बोल रहा हूँ, आप चॉइस करिए, है ना। एक है कि मेरे बहुत कोशिश करने के बाद, कल सवेरे 4:30-5 बजे उठ के मैंने बहुत कोशिश किया, तो 40 स्लाइड्स, एक तो वेलकम का टाइटल है उसको माइनस कर देते हैं, थैंक यू निकाल दिया मैंने, तो 40 स्लाइड्स है। या तो मैं रन थ्रू कट जहाँ बोलना है वहाँ बोलूँ, या मैं स्लाइड्स दिखाई नहीं, जनरल डिस्कशन में कर देता है इस टॉपिक में, पर्पस ऑफ लाइफ। चॉइस इज योर्स, जो जिसमें ज़्यादा बोलेंगे वैसे करेंगे। टाइम कितना है मेरे लिए? चलेगा ना? हाँ, क्योंकि अरे बाप रे, थैंक यू सर, इनके लिए ज़रा जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि मोटिवेटर को भी मोटिवेशन चाहिए, और नॉर्मली ऐसे आदमी कम दिखते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। सभी स्लाइड्स दिखा देते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे, जहाँ बोलना ज़रूरी है वहीं पे मैं बोलूँगा, जहाँ वैसे भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत कुछ ज़्यादा टिपिकल बिल्कुल बज वर्ड मेरे को आता ही नहीं है, जो है वो हमने इसको बताया। तो उसके बाद मैंने लिखा कि देश का जो है या ऑर्गेनाइजेशंस को, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मैंने घूमा, या तो एसेस किया है या ट्रेनिंग दिया है, या तो आपको जो कॉरपोरेट में मैं था वहाँ पे तय HR। अच्छा सर, टू मेक योर सरप्राइज, आई एम ए ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर, BE सिविल, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर इधर आया TQM, देन ISO सेल, फिर HRD एंड सब सारे चीज़ हमने मोटा मोटी देख लिया है। थोड़ा वाइफ का अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, वो मेरे से मिस्टेक हो गया, फॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट हियर, नहीं तो बोले मैं बताती हूँ। तो उसके में मैंने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन की बात है। अभी हम लोग हर कोई बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग अवर प्राइम मिनिस्टर, जीरो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। हो रहा है क्या? फ्रैंकली बताइए, हो रहा है जीरो डिफेक्ट? नहीं हो रहा, मतलब लॉस है ना। नाम भी खराब होता है मार्केट में। अभी नाम को खराब नहीं होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लॉस को साइड में कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं प्लास्टिक से या जिससे है ना, जो ऑडिटर आता है प्लास्टिक से अलग कर देते हैं, है ना। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा हुआ था, वो 5S शुरू किया, जो अनवांटेड मटेरियल है, ऑडिटर है क्या करेंगे, रात को 4-5 डंपर लगाया, ट्रैक लगाया, उसमें सारे भरे, और मॉर्निंग में मैं गया, आई वॉज कंसल्टेंट, बट जब भी जहाँ भी मैं कंसल्टेंट था, मैं एज ए सीनियर टीम मेंबर्स काम किया, क्योंकि कंसल्टेंट बन के आप अटेंडेंस दो, पैसे कमाओ, वो उससे होता नहीं है, आपका काम होगा नहीं। तो देखा नीट एंड क्लीन होल नाइट, सारे लोग लगे, बोले यार करिश्मा है गया, आपने तो बहुत अच्छा कर दिया। अरे क्या समझते हो, क्या इतना करते हैं, सब ने बताया, करके ऑडिट हो गया, एक्सेलेंट बताया। फिर मैं जब सब करके थैंक यू वेरी मच करके जब मैं लौटा वहाँ से, तो देखा रास्ते में 6-7 डंपर खड़े थे,
मैं बोले तो पहचान के लग रहा है। तो वो जो जितने भी अनवांटेड मटेरियल है डंपर में डाल के रोड में खड़ा करके रखा है। फिर उनसे पूछा अभी क्या करोगे? बोले नहीं नहीं, बोला कि एक दिन ऑडिटर आ रहे हैं, जो चले जाएंगे तो फिर आपस इधर ही छोड़ देना। तो इम्प्रूवमेंट किधर है? इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा शायद आप अच्छा नहीं लगे, लेकिन हम किसको बना रहे? हम अपने आप को घुमा रहे। और मैं बता रहा हूं, अभी आप देखिए चंद्रयान चला गया, लेडीज लोग, अभी तो मैं बताऊं कि आपका जो पायलट्स है, जो आपका बम्बिंग करते हैं, एयर पायलट्स वगैरह है, सब लेडीज। इतनी ताकत है करके शिव शक्ति जो अभी यूएन यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, लेडीज की इतनी ताकत, जेंट्स का तो है ही है। इतना करने के बाद भी जीरो डिफेक्ट क्यों नहीं आता? कहीं ना कहीं हम में थोड़ा कमजोरी है, या तो जो कुछ थोड़ा बहुत रह जाता होगा, 4-5% जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी रहती है, उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सवाल है कि थोड़ा सा अगर हम लोग मेहनत करें, उस टीम को बनाएं। स्लाइड में दिखा दूंगा, मैं आ गया मूड में, मैं बोल देता हूँ। नॉर्मली मेरा जरा मूविंग अराउंड रहता है, आज थोड़ा सा कंस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। सवाल है कि अगर हम जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट करें तो कॉस्ट तो कम हो गई, ऑप्टिमाइज कॉस्ट होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा। उस कॉस्ट रिडक्शन से पूरा प्रॉफिट मिलने के उसका कुछ परसेंटेज है लोगों को डेवलप कर सकते हैं। आपका CSR में 2% लिखा है तो वो करना है, उसको मत छोड़ो ना। किसी के कहने पे वाई शुड वी गो फॉर 2% की CSR ने बोला है? अरे हम भी खुद भी तो कर सकते हैं ना। मेरा कॉन्शियस, मेरा दिल क्या बोलता है? अभी फर्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है पनवेल में, मैं जब वहाँ उन्होंने पता लगा बोला, तो मैं बोला, वहाँ पे था, आई वॉज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ महावीर इंटरनेशनल पनवेल सेंटर। तो गवर्नमेंट कॉलेज के इंजीनियर, मैंने ये बताया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो IRS ऑफिसर थे, हमने ये बोला, आप बोली, मैं बोला समाज ने हमको बहुत कुछ दिया, और दिया। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? सोसाइटी हैज़ गिवन और नॉट? सोसाइटी हैज़ गिवन, तो व्हाट शुड यू डू? वी शुड रिटर्न पिक 5%, 10%, 15%। वो कहाँ है? हमेशा कंप्लेंट 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 करते हैं। तो करते फिर वो मैडम बोल रही है ऐसा तो हमने नहीं सुना। अभी गोल्डन जुबली मनाया पिछले साल। मैं बोला ठीक है सर, थैंक यू मैडम, अभी आई एम देयर इन देयर एजुकेशन कमिटी, दे हैव अपॉइंटेड मी देयर। ठीक है। तो सवाल है कि ये जो हम लोग बचपन से हमारे फादर ने किया, ये जो मदर ने मेहनत की, हमारे बाकी लोग जो हमारे टीचर्स जो गुरु हैं, और सबसे गुरु तो जब ऑर्गेनाइजेशन पे व्हेन वी वर्क, हमारे जो बॉस है भले डांट रहा है या जो भी कर रहा है। आजकल तो आप एजुकेशन अगर जाएंगे, कॉलेज स्कूल में जाएंगे तो बहुत आराम का टाइम है, आराम, आप कुछ बोल नहीं सकते, फादर को कंप्लेंट करेंगे, फादर 2 आदमी लेके आ जाएंगे, है ना। अभी ज़माना चेंज हो रहा है, तो उसको थोड़ा टर्न करना है। मुझे याद है क्लास 2 में मैं जब था, 26 एक अचानक टीचर आई, बोले 4 लाइन्स लिख लो। किस लिए लिखो, क्या लिखो पता नहीं, पेपर लिखा, हमने 4 लाइन्स दे दिया। नेक्स्ट डे आई थिंक 15 अगस्त या 26 जनवरी था, तो उस दिन कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मैं कट मारा क्लास 2 में। अगले दिन मैं गया तो बाकी हमारे जो दूसरे छोटे छोटे दोस्त थे, और टीचर बोला अरे कल क्यों नहीं आया, तेरे को तो प्राइज़ मिला है। अभी बच्चे को क्लास 2 स्टैंडर्ड में आई थिंक 7-8 ईयर्स होगा, प्राइज़ मिला तो खुश हो गया मैं टन तो प्रिंसिपल के पास गया, ऐसे ऐसे जंप मारते हुए गया कि मेरे को प्राइज़ मिलेगा। यस सर, मैं आ सकता हूँ? हाँ आ गए। अच्छा तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए प्राइज़। तो उस टाइम के ताड़ से एक तो दिया गाल में। ये कौन सा प्राइज़ है भाई? गड़गड़। उस टाइम तो ढीला भी नहीं मारते ना, बहुत ज़बरदस्त देते हैं यहाँ पे। अभी घर में वाइफ से झगड़ा हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन पड़ा मुझे जोर से। तो फिर मैं वहाँ पे घबराया, बोला क्या? फिर बोला कल क्यों नहीं आया? ये ले तेरा प्राइज़, सेकंड प्राइज़ हैंड राइटिंग में। तो वो टीचर्स है, और वो देखिए ज़माना बदल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन पे भी जो आ रहे हैं ना, सबसे पहले जो आते हैं वहाँ पे आते हैं, जब आते हैं ना आपके जो नए ग्रेजुएट इंजीनियर्स MBA करके, तो फर्स्ट टाइम ये पूछते हैं कि सैलरी कितना है, और लाख से शुरू होता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आपका जो इनटेक हो रहा है, आपको जो इनको ले रहे हैं आप ऑर्गेनाइजेशन में, आपका स्ट्रिंजेंट आपका उसका इंटरव्यू होना चाहिए, उसके बाद लेनी। तो आने से क्या होता है, हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद वो चेंज करते रहते हैं।
कमिंग टू द क्वालिटी में अगर आप TQM लगाते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आई थिंक सबको मालूम है। तो एक जगह मैं गया, मैं बोला आप क्या है, बोला हाँ TQM, हाँ TQM, हाँ हाँ आई नो, वो तो पुराना हो गया, अभी नया क्या है। अरे TQM को अगर आप पुराना हो गया नया क्या है बोल रहे तो आपने कुछ समझा ही नहीं। व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? कैन वी आस्क कि महाभारत क्या पुराना हो गया, रामायण पुराना हो गया, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो इस टाइप से जो हमें उसको करना चाहिए। तो मैसेज यही है, और यही इसमें मेरे को ऐसा लगा कि पूरे देश थोड़ा डिस्टर्ब है, द कंट्री, द स्टेट, सारे जगह डिस्टर्ब है। तो इसमें लीडरशिप प्लेज ए वेरी रोल। लोगों को बोल के कोई फायदा नहीं है। तो लीडरशिप क्या, थोड़ा बैलेंस लीडरशिप होना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए, और विथ ए ह्यूमन फेस। ये ह्यूमन फेस, एक्चुअली ह्यूमन टच, ह्यूमन फेस इज मोर देन 50-60% इट इज मिसिंग। मैंने देखा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे अपना अथॉरिटी को यूज करके जो शिफ्ट इंचार्ज है उसको गाली दे रहा है। आपका डेली वेजेस आपका आता है ना, आपका तो क्या है टेम्पररी वर्कर रहते हैं, तो गाली दे रहा है। उसको मैं यहाँ शेयर नहीं करता। इमीडिएटली मैं गया उसको, मैं बोला व्हाट आर यू डूइंग? अरे सर आपको मालूम नहीं ये लोग। मैं बोला तो तुमने क्या किया? यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज होता हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ा लिए, हमने पढ़ लिया, सोच किया, ये लोग नहीं पढ़ पाए, कुछ पढ़े उनकी गलती से या उनको मौका नहीं मिला, लेकिन उसको तो फिर आप ऐसा स्लैंग लैंग्वेज में गाली नहीं देना चाहिए ना। नहीं सर, अरे आप तो अरे वर्धन साहब के लिए चाय ला। मतलब चाय से नहीं होता है। बहुत होल डे आई वॉज डिस्टर्ब। मतलब गलत कर रहे थे। अरे सर आपको मालूम नहीं क्या? मतलब तेरे से ज़्यादा तो मुझे मालूम है ना, मैं तो तुम्हारे बारे में भी बता सकता हूँ। तो ये कुछ रियल सिचुएशन से लेके बता रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या आता है, अल्टीमेटली जो सोच आता है, जब मुझे बताया गया टॉक दीजिए, बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें प्रोग्राम करते हैं, तो बोला कि मैं बोला आप बताओ कौन सा टॉपिक चाहिए, अगर मुझसे होता है तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करेंगे। तो बोले नहीं यू सिलेक्ट द टॉपिक। तो मैंने बोला पर्पस ऑफ लाइफ। इंस्टेंट आया, इंस्टेंट पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। फिर आज भी मैं अगर देता हूँ पर्सनल में, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, थोड़ा हम लोग थोड़ा डिस्कशन मोड में आ जाते हैं। क्या समझते हैं आप पर्पस ऑफ लाइफ? पर समझते हैं मतलब ना आपका इनपुट मुझे चाहिए। सक्सेस, सक्सेस, और हर टेबल से कम एक तो आना चाहिए। थोड़ा चुप नहीं बैठना है, क्योंकि आई डोंट नो, मेरा अगर क्या बोलते हैं यहाँ पे मेल अगर कनेक्ट होता है तो थोड़ा सा सर्विस टू सोसाइटी, ब्लैक बोर्ड नहीं है, एनीवे बोर्ड नहीं, सर्विस टू सोसाइटी, सक्सेस, और पार्डन, वैल्यूज एंड एथिक्स फॉर हुम, मेरे लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए। और एक आप सर, म्यूचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वेरी गुड। आपका सेटिस्फेक्शन, किसका सेटिस्फेक्शन? सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वेट, ये हो गया। आपके यहाँ से कोई नहीं है बोले? हाँ, सेल्फ अवेयरनेस ऑन व्हाट, मैं कौन हूँ, राइट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। दिस टेबल हैज डन दिस फ्रॉम दिस टेबल। मैंने इतनी तारीफ की लेडीज का, कुछ आवाज नहीं है तो बेकार गया ना। व्हाट यू गिव, वेरी गुड, वेरी गुड, आ रहा हूँ। यस मैडम। अच्छा, मैंने ये कॉमन हो गया क्या ये? हाँ नहीं, मैं समझ गया, उतना तो अभी समझ ही जाता हूँ, नहीं तो बोलते नहीं है। अच्छा, राइट, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। एक और उस टेबल से, लर्निंग, वेरी गुड। कितने अच्छे अच्छे, आप लोग कहाँ थे? बोले हम तो इधर ही थे। हर टेबल जिसने भी बोला एकदम वैल्यू एडेड जो बोला ना, एक एक पॉइंट में है, उसमें डिलीवरेट करेंगे तो और टाइम लगता है, उस पर नहीं जाएंगे। तो सवाल ये है कि जो बोल रहे हैं ना कि आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ, जो अभी सबका लेके मैं थोड़ा समराइज 8:30 हो रहा है, सरप्राइज कर रहा हूँ। स्लाइड शो में फटाफट 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, है ना आपको। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं,
अच्छा इंसान मतलब वैल्यूज एंड एथिक्स आ गया सर आपके आ गए, और आपके सेटिस्फेक्शन सेल्फ भी होना चाहिए, तभी तो मुझे पता लगेगा ना। डैडी मम्मी का भी सेटिस्फेक्शन, आपके सोसाइटी का भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आपने क्या बोला था मैडम? हाँ, गिव बैक टू, सर जो हमने किया उसको थोड़ा बहुत वापस करो, ठीक है। वैसे भी अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ आप पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि जो भी आप देते हैं वो रिटर्न आपको आता है। सुना है ना आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ, वट एवर यू गिव इट कम बैक टू यू। इसीलिए जब हम लोग को थोड़ा सा कॉशियस अगर करना चाहिए, भले कि एज फैक्टर है, अगर हम कुछ किसी को बोल रहे हैं, किसी को फायर कर रहे हैं, किसी को स्लैंग लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए कि मेरे पास आपस आने वाला है। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं गॉसिपिंग में बैठ के, ये पक्का है कुछ महीने में कुछ साल में आपस आपके पास आने वाला है, कोई ना कोई आपके लिए बोलेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये टेस्टेड है, सब देखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसलिए हम लोग कभी बोलते हैं ब्रह्म कुमारी में, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सच बोलो, सोच के बोलो, उस जिसमें मेरा सबसे वीक है, सोच के बोलो, मतलब बिना सोचे ही एक्सटेम्पट से बोला, मैंने रिएक्शन बोलते हैं ना, डोंट आपका रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, तब आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी एज ए एंटरप्रेनर जो आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, आपका क्या है, मैं वैल्यू सिस्टम कर रहा हूँ, पहले तो आप वैल्यू सिस्टम करें। अब कोई भी इंडस्ट्री में अगर ले दीजिए, एक तो स्टार्ट्स विद जो हमने 91 में TQM में पढ़ाया था हमको USA के फैकल्टी ने, कि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो क्वालिटी मैनेज नहीं हो सकता, है ना। आई एग्री फुली विथ दिस, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आपको मालूम होगा कि आपका मेट्रो रेल सर, मिस्टर राव सुने ना, इज़ वेरी फेमस पंचुअल। बोलते सबसे पहले मैं अपने ऑफिस जाता था, फिर मैं घर आता था, और मैं बताता था कि जब तक बहुत ही अर्जेंट नहीं हो मेरे को डिस्टर्ब मत करो, जब तक बहुत ज़रूरत नहीं है मुझे डिस्टर्ब मत। अभी का ज़माना थोड़ा अलग है, सवेरे निकल गए, रात को लेट आए, वाइफ बोल रहा अरे क्या इतना लेट, अरे बहुत काम था, मैंने देखा कुछ काम नहीं रहता है। अगर आपका बहुत काम है इसका मतलब आप इनएफेक्टिव है। सारे मॉर्निंग टू इवनिंग जो आपका 24 आवर्स है उसमें बोलते हैं 8 आवर्स काम करो, 12 एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे है, एंटरप्रेन्योर है, 10 घंटा 12 घंटा लगता है, लेकिन उसके बाद खुद को सबसे पहले, दूसरों को डिसिप्लिन करने जाते हैं हम लोग, अरे पहले खुद तो डिसिप्लिन करें, खुद तो करें, टाइम मैनेजमेंट करें, खुद को डिसिप्लिन करें। और उसमें मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने प्रैक्टिस किया और अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लानिंग में ओवरऑल एक प्लानिंग है, उसके बाद एक माइक्रो प्लानिंग है, माइक्रो से माइक्रो। जैसे हम लोग मैरिज सेरेमनी वगैरह करते हैं ना, आदित्य जी इसके लिए भी किया होगा, इतने बजे इतने आएंगे, क्या है। अगर हम दिन का या हफ्ते का, वीकली ऐसा थोड़ा सा माइक्रो में करें और उसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हमको सक्सेस मिलनी ऑन टाइम रहेगा। क्योंकि नॉर्मली हम लोग पूछते हैं टाइमली हुआ क्या नहीं रहे, अरे क्यों नहीं हुआ रहा है, अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है कि अरे सर आप तो खुद टाइम पे नहीं करते, क्योंकि जॉब में है तो थोड़ा सा सिचुएशन हमको चेंज करने का ज़रूरत है। अभी सवाल है कि हमको आएगा तो जैसा आपने सक्सेस बोला, कोई हैप्पीनेस की बात कर रहा है, गिव बैक टू द सोसाइटी हो गया, मुझे सेटिस्फेक्शन है। मेन जो है ना, मैं कौन हूं, हु एम आई, कोई इनपुट वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। ये जो है ना थोड़ा सा, अभी आपने सुना होगा बचपन से, या जब एज होता है तो बड़े जो सीनियर लोग बोलते हैं खाली हाथ आया था खाली हाथ जा रहा हूं। सुना है आपने, सब लोगों ने सुना है, यू एग्री, खाली हाथ आया था खाला था। ये पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली गलत है। खाली हाथ नहीं आते, जब आप आते हैं तो अपने पास्ट जो जितने लाइफ में, ये जो है ना, दिस इज अ बॉडी, यही लाने का है, यही लाने का है, सिंसियरिटी, और यही मैं बुक में लिखा है। और आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं
कि कभी भी किसी को मिलना है, कुछ करना है, प्लान करो, ट्राई योर बेस्ट। नहीं होना तो ऐसे भी नहीं होगा ना। लेकिन मगर मैं अपने आप से पूछूं, मैंने तो किया ना, मैं तो किया ना, तो ऊपर वाला जो रिकॉर्ड में अप्राइजल कर रहा है वो तो प्लस देना ही पड़ेगा, नेगेटिव है ही नहीं है। ऐसे ही सोच के जब ये बुक लिखने का मैंने सोचा, अभी जो लॉन्च किया है आपने, आई एम वेरी हैप्पी एंड फील, क्या बोलना चाहिए, एनलाइटेड कि इस माहौल में हुआ। मैंने उठा के एक राष्ट्रपति जी को मेल दे दी। लाखों आपके मेल्स आते होंगे उनके, लाखों भेजे। मैंने इनको क्या लिखा, देखिए कितना डेयरिंग हूँ मैं। मेरे को चेहरा देख के शायद नहीं लग रहा है ना, चेहरा देख के नहीं लग रहा है ये कौन है, ऐसे ऐसे ही है। तो मैंने इसको जब भेजा तो भेजा, मैं भूल गया तो एज यूजुअल, और मैंने मंथ भी लिख दिया, इस मंथ में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लिख दिया। मेरे को मन में आया, आई रोट। एक दिन में सर जस्ट जब वर्क नहीं रहता है, थोड़ा अभी वर्क का हमने थोड़ा सा स्लो डाउन किया है, लंच के बाद मैं सो रहा था, मोबाइल बजा, ये फैक्ट बता रहा हूँ, मोबाइल बजा, हाँ हेलो, एक तो हाँ मिस्टर वर्धन, हाँ आप राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते थे। पहले तो समझ में नहीं आया, बोला राष्ट्रपति। फिर मैं बोला ये कोई एफएम रेडियो का होगा, होता है ना एफएम रेडियो को, मेरा दोस्त बोल देता होगा जरा इसको जरा घुमाओ, हाँ हाँ मुर्गा बनाने का। फिर लेकिन वो गलत जगह में आ गया, एक्चुअली मैं तो मुर्गा वो नहीं, तो आके फिर मैं देखा नहीं ठीक लग रहा है, बोला हाँ 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 लग रहा था। तो कल शायद आपसे उनसे मुलाकात हो। बोला अच्छा, फिर बोला हाँ लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लो यहाँ उठाया, यहाँ उठा ले गया, है ना, राष्ट्रपति मिल रहा है मेरे जैसे आदमी को, ठीक है। अभी तो आदित्य मिल गए, महादेवन जी मिल गए तो ठीक है, मैं और ऊपर हो गया। अभी राष्ट्रपति जी मिल रहे बोलने से मैं उठा और बोला लेकिन ये कंफर्म नहीं है, कल नहीं, पड़ाक नीचे गिरा, पूरा गायब। बोले ये क्या है भाई। फिर मैं सोचा नहीं हम आई विल कॉल यू बैक अराउंड 5 or 6 o'clock इन द इवनिंग, तो कंफर्म करके आपको बताऊंगा। मैं सोई नहीं यार, क्या होगा, कैसे करेंगे, तो ऑन कॉल ड्राइवर बुलाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे एग्जैक्टली 5:30 से 6 के बीच में फिर फोन कल आया, मैं देखा ये वही नंबर है, और फिर बोला हाँ मिस्टर वर्धन, हाँ आपका मीटिंग कल कंफर्म है। मैं बोला किसके साथ, बोला वो मुर्मू जी के साथ। अरे बोले किधर है, बोले राजभवन। मैंने कौन सा राजभवन, मुंबई। आप सोचो उस लेवल भी हम लोग बोलते रहते क्या करते कैसे करते, उन्होंने ये केयर किया कि ये जो है ये मुंबई का बंदा है, ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली जाना है तो मेरे को फ्लाइट का एक्सपेंस देके जाना पड़ेगा। वहाँ से आया, बोला जाइए। मैं तो आया, फटाफट रेडी किया, बरसात का सीजन था, जस्ट नया आया, सवेरे उठ के निकल गया, और वहाँ जाके बोला राजभवन किधर है भाई, राजभवन किधर है, मैं कभी गया नहीं। और मैं बोला ये सही है, कहाँ है, मुर्मू जी का क्या है। फिर थोड़ी देर बाद देखा पुलिस वाले दिखा, फिर पुलिस वाले बढ़ रहे, फिर नंबर बढ़ रहा है, फिर एक पोस्टर दिखा कि हमारा उनका स्वागत है। मैं बोला मतलब ये कंफर्म है, ये कहीं है। फिर हमने गया, राजभवन गए, पुलिस क्या है कैसा, गया लिए, तो फिर आके बोला हाँ इनसे पूछिए आपका नाम है क्या। मैं अंदर गया, अंदर जाके बोला नाम क्या नाम है सर। मैं बोला सपन कुमार वर्धन। खड़खड़ जैसा होता है, तो नहीं है। मैं बोला ऐसा कैसा, फिर से देखिए, आई विल हेल्प यू। बोले नहीं मैं करता हूँ। खड़ हाँ यस ये है। चलो है, बुक वगैरह ले गया था, लिया नहीं किसी का, लेके फिर मैं गया। अब जब मैं देखा, मैं तो राष्ट्रपति जी ने बुलाया, मेरे को थोड़ा पावर आ गया। मैं बोला मेरी गाड़ी है ये कहाँ रखूँ कि अंदर रखूँ, है साहब का गाड़ी अंदर जाने दो, लेट मी इंजॉय ना। तो गाड़ी वाड़ी सब अंदर दिया, वहाँ बैठा है। प्रॉब्लम क्या हो गया कि लेट हो गया, इंस्टेड ऑफ 9-10 हो गया। तो ब्रह्म कुमारी के बहुत से लोग हैं, फिर सेक्रेटरी आके बोला सर अलग से नहीं होगा, इनके साथ अब मिलिए, एक के साथ नहीं तो। मैं बोला नहीं मैं तो इसके लिए आया हूँ, बुक किससे बात करनी। बोला सर नहीं हो पाएगा, कहीं छूट जाएगा। तो उनके साथ मिला, मिलने के बाद मेरे दिल में वही क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप दिल से चाहो ना कुछ, ये और एक मैसेज दे रहा हूँ, दिल से अगर आप चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, तो वहाँ नहीं तो उसके आसपास तो आप जरूर पहुँचेंगे, पक्का गारंटी देख के मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने बोला यार ये तो मुश्किल है, सब लोग चले गए,
फोटोग्राफ हो गया, सब ग्रुप फोटो हो गया मैडम के साथ, काफ़ी लोग था। फिर मिला यार बुक का तो है, सब चले गए। अनफॉर्चुनेटली फोटोग्राफर कम नहीं था। मैं आई रश टू हर, और मैडम नमस्कार, मैं तो बुक के लिए आया था। आके बोला हाँ लिखिए ना, लिखिए। बोला मैडम लिख लिया मैं, बट अभी वहाँ प्रिंटिंग में है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको लॉन्च करें। तो अच्छा ठीक है, जब हो जाएगा आप मेरे पास भेजिए, आई एम स्टिल वेटिंग, आप भेजिए, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। कमिट नहीं किया, लेकिन कमिट कैसे करेगी, बोला आप भेजिए मैं देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, अभी पता नहीं है, ये प्रिंट हुआ, अभी सितंबर के बात हुई और हमने उनको भेज दिया, वो पहुँच गया। अभी आएंगे नहीं आएंगे उनके ऊपर है। तो ये क्या बोल रहे कि जरूर है, और बचपन में क्यों बोल रहा हूँ कि दिल से जो चाहते हैं ना, जैसे मैं स्कूल और कॉलेज में भी था तो मैं बोला ऐसा क्या चीज़ है यूएसए और जापान में, क्वालिटी यूएसए, क्वालिटी यूएसए, जापान, जापान, इंडिया का नाम क्यों नहीं आता है? एक बार यूएसए जाके देखना चाहिए, एक बार जापान जाके देखना चाहिए। मैं यूएसए भी गया, जापान भी गया, और गवर्नमेंट अपने पैसे से नहीं, कंपनी के पैसे से गया। तो सवाल है कि आपका इंटेंशन अगर है ना कि उनको आप जानो पहचानो, मुझे ये चाहिए, होता है, बराबर होता था। अभी कहाँ सिविल इंजीनियरिंग में अब 4 मिलियन टन एक्सपेंशन में था, 4 मिलियन टन, मतलब हमने प्रोजेक्ट तैयार किया, कौन सा, कंटिन्यूस कास्टिंग शॉप -21 मीटर टू +21 मीटर बिला स्टील प्लांट। बोले इतना करेंगे, गवर्नमेंट है, जब मैं छोड़ा 1 लाख का स्ट्रेंथ है, कब लगेगा, क्या लगा, प्राइवेट में जाओ। प्राइवेट में जाके ना मुझे मेहनत करना बहुत आता, मैं मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा, और आई विल एंजॉय माई लाइफ। थोड़ा सोसाइटी वगैरह बाद में लेट में आया, तो उधर जाके किया, और पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से आया, सिलेक्शन हुआ, फिर सिलेक्शन हुआ, अल्टीमेटली TQM में सिलेक्शन हुआ और ट्रेनिंग हो गया। तो सवाल है क्या, इन शॉर्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने आप को थोड़ा बिलीव रखिए, होल हाफ हार्टेड कुछ मत करिए, और एज इज नॉट ए फैक्टर। एज जितने भी यहाँ ज़्यादा है कि ये मेरा तो हो गया, मैं अभी जाने वाला हूँ, मैं करने वाला, एज इज नॉट एट ऑल ए फैक्टर। अब ये सेकंड बुक का मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सुप्रीम पावर अपने आप आपको 2 महीने के अंदर ही प्रिंटेड होकर हाथ में आ गया। कैसे लिखाया, क्या लिखा, अर्ली मॉर्निंग लिखा, रात को लिखा, क्या लिखा, आप उसको पढ़ के देखिए, और उसमें मैसेज यही है कि लीडरशिप कैसा अपने यहाँ पे होना चाहिए। तो कहने का है कि अल्टीमेटली मैं जो हूँ ना, ये हम लोग जो आते हैं ना ड्रामा, आपने एक फिल्म देखा है राजेश खन्ना का, राजेश खन्ना का एक फिल्म, राजेश खन्ना का फिल्म देखा है आपने एक मैं ना, वो रेफरेंस आप बोलिए ना कौन सा, जिसमें बोलते हैं ना इस ड्रामा के लिए, हाँ आनंद में आया ना, आनंद में ये सब ड्रामा के लिए आए, एक्चुअली हम लोग ड्रामा के लिए आए। तो ड्रामा के लिए ऐसे बॉडी आते, जो सोल है ना, ये सोल मरता नहीं है, सोल यहाँ जो रहता है ना ये जाएगा। इसीलिए करते हैं जब डेथ होता है तो ज़्यादा रोइए मत, उनको जाने दीजिए, उसने अपना पार्ट पूरा किया, इन एंड आउट, ये फिक्स्ड है। और जो अभी मैंने पहले बोला था, जब आते हैं अपने पुराने कर्मों का लेखा जोखा लेके आते, जो आपको दिखता नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं कर रहा हूँ, अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है अपने पुराने कर्म का। अप्राइजल सिर्फ कंपनी में नहीं होता है, वहाँ पे होता है, और वो एड ऑन होता रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो सारे लोग आते हैं, तो हमको ये कहना है कि जब नेक्स्ट जनरेशन पे जा रहे हैं तो उसमें पहले हम बहुत कुछ करें, और लोगों को हम बदलते हैं ना, लोगों को नहीं कि वो बंद करें, पहले देखें कि हम कैसे हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, आपको पता लगेगा कौन से एरिया जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, कौन से हाँ निगेटिव है। किसी को बोलिए नहीं, उसका एक्शन प्लान बनाइए एंड ट्राई टू इम्प्रूव। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसको आपको रिजल्ट मिलते हैं, ताकि जब आपका रोल यहाँ ख़त्म होगा, जब भी होगा, हमारा भी ख़त्म होगा, तो जब आप नया जन्म लेके एक अच्छे जगह में, अच्छे फैमिली जाके आप इंजॉय करें। दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ द लाइफ। तो जहाँ तक यहाँ का सवाल है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ, अभी एंटरप्रेनर है तो आना जाना लेके आना रहेगा, लेकिन TQM आप इम्प्लीमेंट करिए। TQM इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डूइंग राइट थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। अभी कोई बोला व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ TQM? TQM का है कि मैं जहाँ करूँ वहाँ पे मैं प्रॉफिट मंगाता जाऊँ, प्रॉफिट लीगल वे में,
हैं, जीरो डिफेक्ट को रखते हुए प्रॉफिट कमाएं, उस पैसे से मैं एक और फैक्ट्री खोलूं, एक फैक्ट्री और खोलूं, एक फैक्ट्री और खोलूं, और जहाँ पे भी रहते हैं, ये जो सोसाइटी वाला बात आप बोल रहे हैं ना, आ जाते हैं, सबको आप जॉब दीजिए, लेकिन जब दे रहे हैं तो ट्रीट देम एज योर फैमिली मेंबर। हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस आया, मैंने पैसा दिया, वो ले लिया, खत्म हो गया, उसको थोड़ा सा चेंज करिए। करते ही होंगे आप लोग, अच्छा है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, टाटा का देखिए, रतन टाटा का हम करते हैं, आप बिरला में कुमार मंगलम का, हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन घूम चुके हैं, वहाँ हमने देखा है कैसे रखते हैं लोगों को। एबीजी ग्रुप से लोग छोड़ के जाते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि पैसा ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन जाते नहीं। क्यों जाऊँ? दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी। तो उनको अगर आप लेंगे, दूसरा जो टेम्पररी लोग आते हैं ना, उसको मतलब ट्रेनिंग उनको लीजिए। अरे वर्धन साहब ये तो जाने वाले हैं 6 महीना, एक अरे जाने वाले हैं तो दो ना। सबसे जो ज्ञान होता है, बोलता है नॉलेज, वो है ज्ञान बड़ा, सबसे जो है ना ज्ञान, बड़ा ज्ञान, बड़ा दान। नॉलेज दो ना, 6 महीने जहाँ जाएगा आपका गुणगान करेगा। हो सकता है कि इतना अच्छा हो कि आप उसको परमानेंट कर लो, और जाके आपके अगेंस्ट में तो बात तो नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से अब ऑलरेडी 8:45, स्लाइड शो नहीं कर पाएंगे, फिर कभी मौका मिलेंगे तो देखेंगे, कुछ करेंगे। से लास्ट में यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप खुद के लिए तो करिए, लीगल वे जो आप अभी वैल्यू सिस्टम से बात कर रहे हैं उसके साथ करिए, उसमें से कुछ ज़्यादा कोशिश करिए, जीरो डिफेक्ट लाइए। टीक्यूएम में आपका प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स जो है, यहाँ से मटेरियल लेके वहाँ रखा, वहाँ से बहुत टाइम जाता है, उसको रिड्यूस करिए तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। आज ही एक मैसेज आया, रायपुर छत्तीसगढ़ में कुछ को प्रोडक्टिव बढ़ाना बहुत ईजी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ईजी है। और दूसरा, एज ए एंटरप्रेन्योर और सीईओ ऑफ द कंपनी, जो सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा, आप रिलैक्स हो जाइए, जस्ट गेट रिलैक्स। आप डेली में पढ़े, मॉनिटर जरूर करिए, लेकिन उसको रिलैक्स मोड में करिए। देखिए सारे लोग रिलैक्स रहेंगे, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका क्वालिटी बढ़ेगा, लोग आपके खुश होंगे। टेक केयर ऑफ द पीपल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, हु इन टर्न विल टेक केयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपको ज़्यादा करने का जरूरत है। मिलते हैं, आप देखिए कि कितने बार आप चाय पिए, कितने बार आप उसके घर गए, कितने बार आपने पूछा, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो तो पैसे दे दिए, लेकिन आप गए क्या, पूछ लीजिए। कुछ नहीं लगता, आते जाते गाड़ी से उतर के 10 मिनट पूछ लिए, वो जिंदगी भर आपका हो जाएगा। एनीवे, करे नहीं, सबका ऐसा मैं नहीं, सबका हाथ उठना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या बोले, अरे कहाँ से ला यार, बड़बड़ करके चले गए। हाँ ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्लाइड शो कर देता हूँ, लेकिन आपको 2 मिनट डांस करना पड़ेगा मेरे साथ। एग्रीड? एग्रीड? Basically, the professional growth and development, because professionalism नहीं, मैं क्या लेके आया, क्या गया, और यहाँ पे वर्शिप करने से तो कुछ होने वाला नहीं ना। We know ultimately the Lord,
है ना, चलना चाहिए, नोट तो चाहिए। ओके, कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, मैडम यू अप्रिशिएट, रियली ताली बजाइए ना थोड़ा सा, क्या अपनी वजह से सोसाइटी एंड नेशन, वैल्यूज एंड एथिक्स, सर आपने बोला था, आप इधर लगे, तो जो बोले वो थोड़ा ताली बजाए, हमको भी तो लगे लेगेसी एंड इम्पैक्ट, जो भी है, बैलेंसिंग मटेरियल सक्सेस एंड हैप्पीनेस, जो मैंने आपको बोला, मटेरियल सक्सेस तो चाहिए, हैप्पीनेस का बात है, कहता ना हैप्पीनेस जो है ना ये मेरे में है। अभी मेरे पास एक कार है, ये एसी होना चाहिए, एसी के बाद मेरे को 2 कार चाहिए, फिर मेरे को ये इम्पोर्टेंट चाहिए, फिर उससे बड़ा वाला चाहिए, क्योंकि पड़ोस के वाले हैं, नहीं तो फैक्ट्री के बाद है, जिंदगी भर आप जाके सेटिस्फेक्शन और पीस आ ही नहीं सकता, गारंटेड है। आपके पास रखो ना, मैं चल रहा हूँ। एक बार मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, वाइल कमिंग इन द फ्लाइट, वो नारायण मूर्ति इन्फोसिस, वो बैठे थे, अरे बोले सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर मिस्टर नारायण मूर्ति, यस यू रिकॉग्नाइज मी, सर आप तो उधर क्या बिजनेस क्लास में बैठ सकते हैं और यहाँ बैठे हैं, तो बोल रहा कि बिजनेस क्लास में बैठने से मैं पहले पहुंच जाता था क्या? इसका बाद कोई जवाब नहीं है। और इसका मैंने जो लीडरशिप बाई एग्जांपल में हुआ दिया था, मुझे याद है अर्जिम प्रिंट इनिशियल स्टेज में, अभी जी थोड़ा हर ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी क्राइसिस आता है ना, हमेशा प्रॉफिट नहीं, कुछ न गवर्नमेंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्राइसिस आता है। तब वो क्या बोले, उनका सजेशन उनके सेक्रेटरी ने दिया, प्रेसिडेंट ने, सर हम लोग अभी जो है ना बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं करें, एक नोटिस निकाल देते हैं, तो उनका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रेडी है, तो प्रेसिडेंट बोल रहा है, तो बोले सर वाइस प्रेसिडेंट तक नहीं पाएगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, तो बोला नहीं कोई नोटिस नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? बोला नेक्स्ट टिकट में मैं कहाँ जा रहा हूँ, बोला सर आप दिल्ली जा रहे हैं, ये बोला मेरा टिकट इकोनॉमी क्लास में खरीदा, अपना इकोनॉमी क्लास में खरीदा, और जब वो चढ़े देखा सर अजीब, सर आप इकोनॉमी, सर आपका बिजनेस क्लास आ गया है, मेरे को मालूम है, मैं इधर हूँ, मैसेज इज क्लियर, लिविंग बाय एग्जांपल, लीडिंग बाय एग्जांपल, कोई नोटिस लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और एक कंपनी में था पैसे का प्रॉब्लम है, बोला चाय बंद कर दो शाम को, हाउ मच मनी, तो थोड़ा सा सोच के है ना, अगर आपके पास थोड़ा फीलिंग हो, तो लीडरशिप बाय एग्जांपल अगर आप करें तो ठीक है। ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस लेने के लिए ही तुम पैदा हुए, हम लोग जो आप जो यहाँ बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं, आप तो इंडस्ट्री चला रहे, ये तो मुझे मौका मिला तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप इंडस्ट्री चला रहे हो, ऑर्डिनरी मैन नहीं है, आप लोग ऑर्डिनरी मैन नहीं है, आपने रिस्क लिया, आपने चलाया, और उस दिन आई वाज वेरी हैप्पी जब आदित्य जी बोले मैं नासिक जा रहा हूँ, बोले नासिक घूमने जा रहे, बोले नहीं एक और फैक्ट्री, बोले भाई ऐसा कुछ हुआ जैसे मैं फैक्ट्री का मालिक है, अरे एक और खोला, आप खोलो ना, बाहर से आना माल बंद करो, इधर ही खोलो, तभी तो इंडिया प्रोग्रेस में होगा, वो करने का है। तो वो है चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल, कोई बात ही नहीं है, ऑब्स्टेकल आएगा, ऑब्स्टेकल आता इसलिए है कि आपको चेक करने के लिए आप कितना साउंड है, आप में दम है कि नहीं है, इसलिए आते हैं, आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं, एग्जाम के जैसे पेपर्स आते हैं, उसके लिए आते हैं। वेलबीइंग, स्पिरिचुअलिटी एंड इनर फुलफिलमेंट, अभी स्पिरिचुअलिटी के बाद मैडम और आपने भी बोला स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वेलबीइंग, स्पिरिचुअलिटी, इनर फुलफिलमेंट, सक्सेस, सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पीपल नीड हैप्पीनेस, सक्सेस से ही हैप्पीनेस आएगा ऐसा नहीं है, हैप्पीनेस आएगा जब आप चाहते हैं हैप्पी होना तो ही हो पाएगा, कोई नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको हैप्पीनेस नहीं ला सकता, आपको चाहना पड़ेगा कि आप कैसे करना है। Spirituality is not a separate path. It teaches us how to walk royally on our path. ये बता रहा है। किसी के लिए आप गलत नहीं सोच रहे, किसी के लिए आप गलत नहीं कर रहे, और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कई जगह क्या होता है कि राइट है वो रॉन्ग है, ठीक है आपको पता लग रहा है रॉन्ग है, लेकिन आप बोलते नहीं है, क्यों? मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा। अरे कैसा रिलेशन? आपको लग रहा है वो गलत कर रहा है, बोलो, क्यों नहीं बोलोगे? आपका काम है बोलना। The purpose of spiritual effort is to learn how to live and love everywhere, everyone, everything and every time. इसका नहीं है कि मैं जो प्रैक्टिस से बाहर आऊंगा तो ही मुझे करना है।
और बर्थडे है तो मैं म्यूजिक बजाता हूँ, तो अभी आर्टिस्ट को नहीं बजाएंगे। ये ऐसे ये हमारे पोजीशन थे जो हमारे मम्मी ने हमको लिया हुआ था, हम लोग भूल जाते हैं। फिर हम लोग बड़े हो गए, आजकल लैपटॉप भी लेने लगे, जैसे मैं भी लेके आया, है ना, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं दोनों, है ना, शादी नहीं हुई थी ना तब तक, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, किड्स हो गए, बहुत अच्छे चारों मिलके, पहले जैसा तो है ही नहीं। उसके बाद ये हालत, ये है कि नहीं है, ये है, क्योंकि आप मुझे कोई नहीं बोल नहीं सकते कि मैंने देखा है। और लोग मेरे पास आके सर मैं क्या करूँ, मैं बोला पहले मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर मैं तुमको देखता हूँ। उसके बाद जो है ना अल्टीमेटली ये होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन पे ये हो रहा है। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो हैप्पीनेस आपको किधर आएगा, है ना। आप जैसे बोले ना आपका पर्पस ऑफ लाइफ किधर है। फिर ये हम लोग देखते हैं कि मेहनत करते हैं। अभी आज का जो बच्चा है ना वो पास करता है, MBA करता है, लगता है कि मेरा जो है ना पहले 1 लाख से शुरू होना चाहिए, आई शुड गेट एयर कंडीशन ऑफिस। कैसा मिलेगा रे भाई, उस माहौल में ही नहीं लेके जा रहे कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग फैक्ट्री में गए, फिलहाल स्टील प्लांट में, तो नीचे फ्लास्ट फर्नेस के सामने जाके खड़े होते थे, कब जाएंगे तब पता नहीं है, कैसा आएगा, वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए जो ये जो है ना, तो ड्यूटी की बात की, ये -40 डिग्री सियाचिन में काम कर रहा है। और ये जो है ना आपका राजस्थान में आपका समर सीजन पे आपको बात कर रहे हैं, तो समर सीजन में दोनों जो कर रहे हैं इनको दे आर गेटिंग सैलरी, बट इसके साथ वो देश की सेवा कर रहे हैं, नेशन, इसलिए बोले नेशन फर्स्ट, वो जो आजकल थोड़ा सा सबको जरूरत है बोलने का। हु एम आई, ये सोल है, ड्राइविंग ऑन व्हीकल। अभी आप कार में जो भी आए आप ड्राइव किए, लेकिन आपको कौन चला रहा है, तो सोल चला रहा है। और जिस दिन आप छोड़ के चले जाएंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा मिस्टर गए, बोले उनका बॉडी चलेगा, बॉडी रहेगा, उनका बॉडी चलेगा, आपको नहीं बोलेंगे आपके। हु वांट्स चेंज, सबने रेस किया, तो फिर ने बोला हु वांट्स टू चेंज, नोबडी वांट्स टू चेंज। जो मैं मॉर्निंग में और इन द बिगिनिंग मैंने शुरू किया, वी आवरसेल्फ हैव टू चेंज, और उसके लिए हमको हेल्प चाहिए, सबको सुनना है। मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ करना है, लेकिन दूसरे को आप बोले। ये माइंडसेट की बात है, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपके ना ग्रोथ माइंडसेट को आप थोड़ा सा उसको प्रमोट करिए, उनको एनकरेज करिए, तभी इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी जैसा यहाँ पे है अंडरस्टैंड, धीरे धीरे, ये साउंड नहीं है ना, साउंड इज नॉट कमिंग। ये एक्चुअली क्या करेंगे इसका, नहीं किया नहीं अंडरस्टूड ना, आवाज नहीं आ रही। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 वहीं खड़ा है, तो क्या अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है ना। बोला आपने 4 बोला नहीं, मैं वहाँ गया नहीं। ये है ट्रांसफॉर्मिंग माइंडसेट, अपने को माइंडसेट ही चेंज करना है, बाकी सब काम हो जाता है। तो ये आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन में, क्या दिख रहा है, रेड अम्ब्रेला। हाँ, एक तो अम्ब्रेला दिख रहा है, फिर ब्लैक अम्ब्रेला दिख रहा है, फिर आपको रेड दिख रहा है। जो रेड एवरीबडी हैज टू बिकम ए अम्ब्रेला ऑफ रेड कलर लाइक दिस, ताकि लोगों के बीच में उन्हें पहचाने जाए यू आर समथिंग डिफरेंट देन अदर्स। एंड n+1, जैसे मैंने बोला कभी भी कोई भी है, n जो है आपका जो रेगुलर के आपका जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो आप करते हो, लेकिन उससे एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ही जाके आप कर सकते हैं। ये मेरे माई फ्रेंड, ये प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर है, थोड़ा लो लेवल पे है। Where others see walls, I see door, जिंदल सा बोले मेकिंग लाइक अनवाइंडिंग, और ये रिलैक्सिंग भी बहुत जरूरी है। अगर टाइम नहीं है गाने का नहीं बता सकते। लव एनिमल्स ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और लव एनिमल्स में डॉग का बात करेंगे तो आई विल प्रेफर कि स्ट्रीट डॉग को अगर लाए तो उसको भी आप पाल सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा
उससे ज़्यादा फेथफुल कोई नहीं होता। आपको जो डॉग है स्ट्रीट को लगे तो आप कर सकते हैं। डेवलप इंस्पायर कल्चर बिल्डिंग लीडरशिप बाय एग्जांपल, ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट पुट करिए। ये आवाज़ नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको थोड़ा बढ़ा के देखिए जरा, अच्छा बताया था। चीज़ों के लिए वक्त निकालो जिनसे सच में खुश तुम्हें कैसे बताया कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? Seize the day, my friend. पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना। खुशी का प्लान कर रहा है, खुशी के लिए भी प्लानिंग कर रहा है। साउंड सिस्टम बहुत करो, ये देखिए, ये हैप्पी कुछ नहीं है। अभी देखिए कैसे, अब थिंक, ये देखिए कैसे हो रहा है। दे आर ऑल्सो पीपल बट दे आर हैप्पी, यहाँ से दिखता है। ये देखिए कपल, हम लोगों को नहीं दिखेगा, दोनों एक साथ बैठेंगे तो एक का फेस इधर एक का फेस इधर, है ना। ये क्या बोल रही है मैडम, ये उनको तो पहचानते होंगे आप, शिवानी दीदी। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए दुखी है। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी का। तो हम लोग कभी ऐसा, ये मैंने बताया क्वालिटी प्रोसेस मैनेजमेंट, पीपल प्रोसेस, लर्न। और ये एक चीज हमको थोड़ा मैं बता रहा था, हम लोग लगता है कि बहुत कुछ लर्न किया, ऐसा नहीं। जो लर्न किया उसको पहले अनलर्न करिए, उसको निकालिए और आप फिर रीलर्न करिए। ये अभी ये सब, ये देखिए, इसके लिए जो है ना सब बच्चों को और ऑर्गेनाइजेशन पे जब ट्रेनिंग देते हैं तो हम लोगों को रुथलेस होना चाहिए, हार्ट नहीं रहना चाहिए कि क्या होगा, थोड़ा साउंड बढ़ाना है। ये जापान का ये रीजन है कैसे उन लोग आगे जाते हैं। काइजन आप लोगों को मालूम होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे लगाइए काइजन चीज अच्छा रहेगा। दो गोल्डन रूल इज ट्रीट अदर्स लाइक यू विश टू गेट ट्रीटेड। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स। कभी कभी हम सोसाइटी में करते हैं बट वो एक्सपेक्टेशन वो तब उसका रिजल्ट नहीं आता। गेट ऑनेस्ट फीडबैक ऑफ योर वर्क। आप लोग को डांस करने का मूड है क्या उधर? हाँ, मैं समझ गया हूँ फेस एक्सप्रेशन से सब लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो चलिए फिर उसको फिर छोड़ देते हैं। चल, थैंक यू वेरी मच। Introduce our company secretary Rupali Sawanji. She is here today with us. Karanji, please come with her. So these are all the backbones of our association, which at the front end they are never there, but entire association is running because of articles and things that they have designed for us and taking care. So thank you for coming, ma'am. Yeah, Karanji. Karanji, Kanan. Ashok ji, please come here, and I would request you to give a vote of thanks and also a little memento that we have got for our speaker. Dada, Ashok.
गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थोड़ा स्नैक्स को थोड़ा सा खाते खाते भी मुझे सुनिए। दादा की बातों का कुछ सार ऐसा है, बाबू मोशा है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बाबू मोशा है, हम सब रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन जाने कब किसकी डोर ऊपर वाला खींच ले। एम आई राइट सर? ओके। दूसरा इनका हुआ है, आप जिस चीज़ की तमन्ना पूरे दिल से करो, कायनात किसी ना किसी तरीके से वो आपसे उसको मिला देती है। ये डायलॉग मेरा नहीं है, शाहरुख खान का है। फिल्म कौन सी थी? चलिए फ्रेंड्स, ऑन बिहाफ ऑफ इरमा, I thank Mr. Sapan Kumar Pardon for sparing his time, and my personal thanks for a copy of book you have given to me. And मैं जब आ रहा था तो मेरा ग्रैंड नेफ्यू मेरे से पूछता कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा हमारा एसोसिएशन का मीटिंग है। बोले आपका क्या काम है वहाँ? मैंने कहा शायद सेक्रेटरी मुझे बोलेगा थैंक यू। बोले रोज़ रोज़ तो वही होता है, साठे साहब तो हमेशा करते रहते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं। मैंने कहा मैं आज उल्टा करूँगा। सबसे पहले मैं जिमखाना को थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने ये हाल अच्छा ठंडा बनाए रखा। शायद खाना भी अच्छा दे रहे हैं और ड्रिंक्स भी अच्छी होगी। फिर मैं इरमा के मेंबर्स को थैंक करूँगा कि जो यहाँ आए और उन्होंने सपन दादा को सुना। फिर मैं पास प्रेसिडेंट थैंक्स करूँगा क्योंकि उनसे इस शो की रौनक बढ़ जाती है। फिर आखिरी में मैं मैनेजिंग कमेटी को थैंक्स करूँगा कि उन्हें ये अच्छा मौका मुझे दिया। तो थैंक्स टू ऑल, हैव ए गुड डिनर, जॉइन अस फॉर कॉकटेल and have a great time. Thanks everyone. Friends, we can disperse for cocktail and dinner. The bar is open.